Good morning, students. Today we have a topic of part 2 of children with special need for Divyang students, for Divyang children. We have already covered the disability in yesterday's class. Intellectual disability हमने कर लिया है and cognitive disability and physical disability we have covered. Today I would like to teach you the type of disorder. First I will discuss the what is disorder, उसके cause क्या है, क्या nature है, क्या symptoms रहते हैं. ADHD है, जैसे SBD, SPD है, ASD है, OD है, OCD है. Today we have only covered three topics: ADHD, SBD and ASD, and we will discuss later two of them in next class. So disorder क्या है? आप disorder से क्या समझते हो? Basically disorder एक illness है और dysfunctional factor that affect the physiological and or psychological of an individual. It means डिसरप्ट करता है नॉर्मल फंक्शन ऑफ पर्सन को, लाइक कि इट विल डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ पर्सन, दैट इज अ डिसऑर्डर. इस तरीके की इलनेस जो कि इसे डिसरप्ट करे साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली. डिसऑर्डर कैन नॉट बी डिटेक्टेड. डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते एज अ टाइम, बट पेरेंट्स डॉक्टर कैन सी विद देयर disruptive functioning of physiological and lacking on psychological of an individual. Okay, डिसऑर्डर किस तरीके के हो सकते हैं? मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है. मेंटल डिसऑर्डर हम ADHD को बोलते हैं. सब्सटेंस अब्यूज हो सकता है. ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है. अटेंशन डिसऑर्डर हो सकता है. एडिक्शन डिसऑर्डर हो सकता है. Human brains have their subtypes such as neurological disorder, hyperactivity disorder, psychological disorder, etc. मेडिकल डिक्शनरी में डिसऑर्डर को क्या बताया है? डिसऑर्डर इज अ डिस्टर्बेंस ऑफ फंक्शन. डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस पैदा करता है फंक्शन में, स्ट्रक्चर में, एंड बोथ that resulting from genetic embryonic failure in development or of exogenous factors such as a poison, trauma or disease. Okay, so we have covered here the what is disorder. All right, so first disorder हमारा क्या है कि दो तरीके की हमने बात की थी अभी पीछे, कि ये वाला जो स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है, किस तरीके के डिसऑर्डर होते हैं. Structural disorder क्या है? It is visible. Some part or other body is observable different from what is considered physiological normal, or it can be psychological disorder. Example, disorder of the mind. ठीक है. Structural disorder can be alter the physical structure or affective individual or cause intellectual deviances, unnaturalness. Functional disorder क्या है? Is different in the sense that is less noticeable, rather the inner chemistry of system, मतलब like psychologically is disturbed by malfunctioning of an organ or hyposecretion. There a lot of chemical reactions can be done in our brain, in our nervous system. So उनमें disturbance हो जाती है, उनकी malfunctioning, that is functional disorder. सो हमारे पास कितने तरीके के डिसऑर्डर हैं, क्या उनके कॉजेज हैं, क्या नेचर है? हमारे पास पहला ADHD है, SPD है और ASD है. हम आज इन तीनों के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर मैंने बताया अभी, डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल हो सकता है, फंक्शनल हो सकता है, इट कैन बी हार्मोनल, न्यूट्रिशनल, फंक्शनल, ठीक है, मेंटल, सोशल. Due to all these or enough, these persons life skill and functional performance is affected. Yes, जो भी वो डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं वो सारी एक्टिविटी इन चीज़ों से अफेक्ट होती है. दिस इज डिसऑर्डर. इट इज अ टाइप ऑफ इलनेस दैट रिलेट टू फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. अब हम आते हैं ADHD पे.
ADHD स्टैंड फॉर अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि इसकी एब्रिवेशन से ही आपको पता चल रहा है, हाइपर एक्टिविटी. It is related to neurodevelopment problem and it is considered as mental disorder. जैसे क्वेश्चन आ जाता है among of them which is a mental disorder. So ADHD is a mental disorder. A child with the order face extreme difficulty at paying attention. उसको बहुत अटेंशन पे करने में एक जगह पे बैठ के और कंट्रोल उस वो अपने हाइपर एक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाता. ही और शी माइट बी इम्पल्सिव, रेस्टलेस, दे कांट sit at one place. It is found in both children and adult, but with varying symptoms, which may be listed as under in next slide, but critically hampering their ability to achieve goal. This variant of attention disorder can wreak havoc in family, school, and social life, and it can place a great stress on parents, siblings, friends, teachers, and other close connected with the child. जिस भी बच्चे को ADHD है, वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा हो, फ्रेंड्स के साथ रह रहा हो, टीचर्स के स्कूल भी तो जाते हैं बच्चे, तो उसमें वो क्या फील करते हैं, इनके बहुत स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स को उनके साथ डील करने में, टीचर्स को. इसलिए जो ये इस तरीके का डिसऑर्डर जिन भी बच्चों में होता है, उनके लिए अलग से टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं. जैसे हमारे स्कूल में भी टीचर हमने लगाए हुए हैं, स्पेशल एबल टीचर रखे हुए हैं स्पेशल एबल बच्चों के लिए. सेकेंड स्लाइड में हम बात करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं इसके. द इंडिविजुअल इज फॉरगेटफुल अबाउट हिज और हर डेली रूटीन, कि वो उनको भूलने की एक तरीके से बीमारी होती है, वो अपने रूटीन को भूलते हैं. अनेबल टू सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हिज रूटीन एक्टिविटी. रूटीन एक्टिविटी क्या है, सुबह उठते हो, नहाते हो, खाते हो, फिर स्कूल जाते हो, तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते. ठीक है, ड्यू टू वाई, ड्यू टू देयर पोर सेल्फ एस्टीम. और दूसरा उनका वो एक जगह अटेंशन पे नहीं कर सकते, अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते. द इंडिविजुअल हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन to her his present setting, often losing herself himself in अपने आप में ही खोए रहते हैं, डे ड्रीम में. ठीक है. द इंडिविजुअल हैज ट्रबल इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन. जैसे टीचर्स आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास में, डू दिस, डू नो दिस, एंड फिर उस ये चीज़ें जो इंस्ट्रक्शन है उनको वो फॉलो नहीं कर पाते, उनसे उनको ट्रबल होता है. दे ऑफन मिसप्लेस और लूज हिज और पर्सनल आइटम. यस, मैंने पहले ही बताया, वो भूल जाते हैं चीज़ों को. ठीक है, तो वो अपनी चीज़ों के टूवर्ड्स क्या नहीं होते, केयरफुल नहीं होते. दे मेक एम्पल अमाउंट ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स. बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, सिली मिस्टेक, केयरलेस, जिसे जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. दे टॉक एक्सेसिवली. बातें करते हैं. दे लूज टेम्पर ईजिली. बहुत ईजिली टेम्पर, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस जिनको ये बीमारी है, जिनको ये डिसऑर्डर है, वो बच्चे एक जगह बैठ नहीं सकते, तो वो डिस्ट्रैक्ट ही रहते हैं. डे ड्रीम के बारे में मैंने बताया. चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज शो अनदर ADHD दैट इज बीइंग क्वाइटर एंड लेस इन्वॉल्व देन अदर किड्स. क्योंकि वो अपने आप में ही खोए रहेंगे, तो दूसरे बच्चों में भूलेंगे नहीं, फोकस नहीं करेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, लैक ऑफ प्लानिंग रहेगी, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर रहता है बस अपने आप में. एंड इट कैन बी ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस. वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड कि सिम्टम्स क्या हैं, वो जो हम पहले ही बता दिए हैं, वो भी एक तरीके के सिम्टम्स थे. द इंडिविजुअल हैज एंजाइटी अटैक एंड क्विक टेम्पर. एंजाइटी इशू होते हैं ना, वैसे नॉर्मली कई लोगों को मतलब बहुत एंजाइटी हो जाती है, अराउजल लेवल बढ़ जाता है बॉडी का, तो इनको एक नॉर्मल लोगों से ज़्यादा इनका अराउजल लेवल होता है. एंजाइटी अटैक आते हैं, क्विक टेम्पर होता है, कभी भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, इम्पल्सिव हो जाएंगे, और कंसंट्रेट करने में वाइल रीडिंग इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है. द इंडिविजुअल इज फॉरगेटफुल, हैज अ शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड गेट बोर इजीली. बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. मूड स्विंग,
मूड स्विंग्स के कारण अभी ये करना है, अब इसका मन नहीं है, अब उसका मन नहीं है, दे मे फॉल इनटू डिप्रेशन। क्योंकि एक व्यक्ति जिसको ये प्रॉब्लम है, एक बच्चा जिसको ये प्रॉब्लम है, उसके हर वक्त मूड स्विंग्स होते रहेंगे, तो नोबडी कैन एडजस्ट विद देयर मूड्स, सो दे हैव प्रॉब्लम इन रीडिंग बिकॉज दे हैव ए लो सेल्फ एस्टीम। अब मैंने बताया सेल्फ आइसोलेटेड, वो अपने आप में ही खोए रहते हैं, सेल्फ फोकस्ड बिहेवियर में। अब कॉजेज ऑफ एडीएचडी कि भाई कारण क्या है एडीएचडी का। अब ब्रेन इंजरी ड्यूरिंग बर्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज, यस। कैसी कैसी ब्रेन इंजरी? लाइक some children who have suffered accidents leading to brain injury may show some sign of behavior similar to that of ADHD, but only a small percentage of children with ADHD have been found to have suffered a traumatic brain injury. Okay, substance abuse such as drinking alcohol, smoking, or taking drugs may cause ADHD. We can say that environmental, this second indicator, we can say environmental agents. Studies have shown that possibly correlation between the use of cigarette, alcohol during pregnancy and risk of ADHD in the offspring of that uh, pregnancy. So we do not use cigarette and alcohol during pregnancy. It may cause ADHD to the infant. Infant born with low birth weight are more likely to develop disorder. Yes, होता है ऐसा, जिन बच्चे बहुत वेट कम होता है या प्री मेच्योर बेबी जो होते हैं, जो 37 वीक से वीक ऑफ प्रेगनेंसी से बिफोर बीइंग बॉर्न प्री मेच्योर होते हैं, उनको इट कैन बी कॉज फॉर दिस ADHD. And children with ADHD have also been known to have high blood lead level as compared to other, and artificial food color and sodium benzoate have also been found to cause ADHD. The symptom of ADHD are excreted by sugar and food additive. It is found that diet restriction helped about 5% of children with ADHD, mostly young children who had food allergy. अब लास्ट पॉइंट है जेनेटिक लिंकेज, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इंडिकेटर of the cause of ADHD here. See how genes are involved here to cause of this disease, because we have seen a lot of studies that prove that twins now show a strong genetic influence that exists in the disorder. It is true to say that disorder often run in families, so there are likely to be genetic influence. Study indicate that कि 25% क्लोज रिलेशन ऑफ फैमिली से ही एडी, अगर ट्विंस में एक को है तो इट कैन बी कि दूसरे को भी हो, ठीक है। दिस इज द जेनेटिक लिंकेज. So we have covered here causes of ADHD, and now next slide. नेक्स्ट है हमारा SPD. SPD से क्या समझते हैं? सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ये क्या है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर? जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, समथिंग सेंसरी प्रोसेसिंग, समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन नर्वस सिस्टम. ओके, so in the SPD is a condition which the brain has trouble receiving and responding to information that coming through the senses. कि जब हमें, अगर कोई छोटे बच्चे होते हैं और गर्म पानी में अगर आप हाथ डालते हो या बिजली इलेक्ट्रिसिटी का आपको झटका लगता है तो आप पीछे की तरफ हाथ फेंकते हो ना, तो इट मीन्स कि आपके एफ्रिन और एफ्रिन नर्व्स अच्छे से काम कर रही हैं और वो आपको सिग्नल दे रही हैं, और उसी से आप जो है डिसीजन ले पा रहे हो कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना है. तो इनको इनके ब्रेन में इस तरीके की ट्रबल होती है, वो सिग्नल ना तो रिसीव कर पाते और ना ही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है.
and people with sensory processing disorder may be hard to engage in conversation or play, be unable to tell where their limbs are in space, bump into things, be uncoordinated. Basically, this problem are usually seen in children, but affected adults are also affected by it. And this problem are commonly seen in developmental condition कि जब बच्चा एक ग्रोथ और डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, जब डेवलपमेंट की स्टेज की तरफ होता है तब हम इस डिजीज को देख पाते हैं. ये sometimes the sound of rain, wind, texture of certain food, smell can also disturb her. मैंने कहा ना, सेंस, जिससे सेंसरी नर्व, जिससे हम फील कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं, जितने भी हमारे ऑडिटरी नर्व्स हैं, जिससे हम जो हमारे सेंस हैं, जैसे किसी रेन की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है, तेज हवा चलती है, उससे दिक्कत होती है, फूड किसी तरीके की स्मेल ऑफ फूड से उनको दिक्कत होती है, जिससे कि उनको वॉमिटिंग हो सकती है, इलनेस एंड ओवर रिएक्ट करते हैं. एसपीडी में अफेक्ट है सेंस सच एज टच, साइट, टेस्ट और मूवमेंट. द एग्जैक्ट कॉज जो है डिसऑर्डर का इज नॉट आइडेंटिफाइड येट. सम सेंसरी डिस्टर्बेंस लाइक लाइट एंड साउंड में हिंट एट जेनेटिक लिमिटेशन. We have here some mistake. This is not order, this is disorder. See, कारण क्या है एसपीटी के, कि होता क्यों है. एज विद एडीएचडी, जैसे एडीएचडी में जीन प्ले करता है, ऐसे ही एसपीडी में करता है. और जिनको एडीएचडी होता है वो उसको एसपीडी भी हो सकता है. इंडिविजुअल विद एसपीडी हैव अ डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड देयर न्यूरोलॉजिकल फंक्शन response stimuli are different from ours. Low birth weight we have already discussed in last slide. The relatively are the same causes are there, and the factors such as inadequate care during pregnancy, which I have already told you that cigarette, alcohol, इन सब चीज़ों का हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इट मे अफेक्ट एंड कॉजेज टू बॉर्न दीज डिसऑर्डर्स. एंड ड्रग एडिक्शन हो गया, इम्प्रॉपर स्टिमुलेशन हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हमने डिस्कस कर लिया है. चिल्ड्रन एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी, चिल्ड्रन विद सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम, मतलब बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग प्रॉब्लम होती है, एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है व्हेन दे आर साइमल्टेनियसली एक्सपोज्ड टू लाइट एंड साउंड, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. नेक्स्ट है एएसडी. एएसडी हमने अभी मैं बात कर रही थी आपसे कि हमने खत्म किया एसपीडी, अब हमारे एएसडी पे. एएसडी क्या है? एक हमने पहले पढ़ा एडीएचडी जो कि मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है. फिर पढ़ा हमने एसपीडी, पीछे जाएंगे तो हम देखेंगे इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ठीक है. थर्ड वन हमारे पास आता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. इट इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर. This is a wide range of impairment where various symptoms can be observed in a child skill performance. मतलब जब वो कोई भी एक्टिविटी करता है and can be graded at various level. Okay, काफी सारे ASD के लेवल हैं. ASD is a condition related to, it is also a brain development, बट इसको लेवल में हमने डिवाइड कर दिया है. इसकी रेंज थोड़ी और उससे थोड़ा और आगे जाती है. दैट इम्पैक्ट हाउ पर्सन परसीव, कि उसमें तो ब्रेन से उसने सिग्नल लिए, जब हमने पीछे बात किया सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में, और उसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर और प्रोसेस करने में उसको दिक्कत होती है. पर यहाँ परसीव करने के बाद सोशलाइज, यहाँ पे हम सोसाइटी को इंटरेक्ट करने में उसको बड़ी दिक्कत होती है, कम्युनिकेट करने में बड़ी दिक्कत होती है. एएसडी में बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिपेंडिंग अपॉन द symptom. You can see the three functional level of autism. फर्स्ट ASD लेवल ऑफ रिक्वायरिंग सपोर्ट. आप देख रहे हो ना, सारे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर. ही has facing the problem to initiate a social interaction. Second one is
limited to narrow spatial interest, frequent restricted repetitive behavior भी करते हैं. और थर्ड लेवल क्या है, सब्सटेंशियल सपोर्ट, मतलब रिक्वायर्ड सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, इसमें भी चाहिए ही चाहिए. इम्पॉर्टेंट है कि वर्बल नॉन वर्बल ये अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये अच्छे से सोशली गेम्स में गेम बनाना, और जो जब छोटे बच्चे कई बार बॉक्स से गेम बनाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं वर्बल में नॉन वर्बल में, तो वो इजीली इन सब चीज़ों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. सो सिम्टम्स क्या हैं? बेसिकली सिम्टम्स से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ASD अफेक्ट करता है चाइल्ड ऑफ 12 ईयर ओल्ड बिहेव लाइक 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड. जो 12 साल का बच्चा है वो 6 साल के बच्चे की तरह बिहेव करेगा. ASD behavior is seems only parents or doctor can identify them in infant and toddlers. जब वो infant होते हैं, toddlers होते हैं, तो उनके सिम्टम्स को देख के सिर्फ डॉक्टर या पेरेंट ही बता सकते हैं, क्योंकि जो पहली बार मिलेगा वो उनके बिहेवियर से उनको शायद जज ना कर पाए. नॉट ऑल पीपल विद ASD विल शो ऑल ऑफ दीज बिहेवियर. जरूरी भी नहीं है कि ये सारे जिसको ASD है वो इसी तरीके के बिहेवियर करे. किसी का कुछ बिहेवियर होता है, किसी का कुछ बिहेवियर होता है. यहाँ पे हमने एक और दो बातें हैं मेन, कि देयर आर टू मेन टाइप ऑफ बिहेवियर जिस तरीके के वो बिहेव करते हैं. एक तो रिस्ट्रिक्ट करेंगे खुद को, रिपीट करेंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर करेंगे, एंड सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, जो कि यहाँ पे मैंने तुम्हें एक ये इसमें हमने बात करी है सोशल इंटरेक्शन की. इन तीनों स्लाइड्स में ये रिस्ट्रिक्टेड, रिपीटेटिव बिहेवियर, ये तीनों टाइप मैंने आपको क्लियर कर दिए थे. रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर क्या, कि having overly focused interest such as with moving object or part of object, बार बार चीज को, ऑब्जेक्ट को मतलब घुमाना, चीजों को रोटेट करना. Having a lasting intense interest in certain topics such as facts, number or details. In this case, repeating certain behavior or having unusual behavior. All right. तो अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ते हैं. फेलिंग टू रिस्पॉन्ड टू देयर नेम, यस. रेसिस्टिंग टच एंड प्रेफरिंग टू प्ले अलोन. अकेले खेलना ज़्यादा पसंद है, टच को रेसिस्ट करते हैं. एब्सेंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है. इनेबिलिटी टू गिव और सस्टेन आई कॉन्टैक्ट. डिफिकल्टीज इन डेवलपिंग नॉर्मल स्पीच, जब बोलेंगे तो नॉर्मल स्पीच नहीं आती नॉर्मल बच्चों की तरह. बोलते वक्त आवाज़ में थोड़ा साउंड हैवी होगा, या आप समझ नहीं पाएंगे. जब बोलेंगे तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा. यूजिंग वर्ड्स और फ्रेज रिपीटेडली इवन दो द माइट नॉट नो द मीनिंग. किसी एक वर्ड को, फ्रेज को पकड़ लेते हैं, बार बार उसको बोलते रहते हैं, पर मतलब नहीं पता होता. कई बार बच्चों को देखा होगा आपने, जो ऐसे बच्चे होते हैं वो क्लास में भी जिनको जिनको ASD नहीं है या कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स भी होते हैं, वो भी बार बार एक ही बात के बारे में बात करते रहते हैं, एक ही चीज पे अटक जाते हैं. अनेबल टू फंक्शन नॉर्मल इन सोशल कम्युनिकेशन, यस वो मैंने आपको बता दिया. रूड रहते हैं, पैसिव रहते हैं. इनेबिलिटी टू रीड द facial expression, body language of others, performance of action that might cause harm to self like biting, banging the head. क्या होता है अगर आप इनकी कोई बात ना मानो, या इनके अकॉर्डिंगली, इनके मूड से जो वो चाह रहे हैं उस तरीके की एक्टिविटी आप उनको ना कराओ, ना करने दो, रिस्ट्रिक्ट करो, तो वो अपने आप को काटेंगे, हेड को बैक करेंगे. तो वो चीज़ें जो है ये अपने आप को सेल्फ हार्म करते हैं. ऑड मोटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो हमारी मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, जो हमारे लिम्ब मूवमेंट्स होती हैं, हाथ पैरों की मूवमेंट है, एक्सरसाइज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट है, इसमें जो है ये बहुत ज़्यादा इनका कोऑर्डिनेशन नहीं होता. क्लमजी वॉकिंग, जैसे हम नॉर्मल वॉक करते हैं ऐसे नहीं करते. स्टिफ बॉडी मूवमेंट, अलग से तरीके का चलना होता है इनका. preferences with regard to food that are absolute and cannot be defined, such as restricting the diet to only few select food variety and refusal to try new one. जो उनको एक बारी बस बहुत ही selected food पे ही वो रहते हैं,
और नए कई बारी पेरेंट्स इंक्लूड करना चाहे या टीचर इंक्लूड करना चाहे, नहीं आज आप ये खाओगे, तो वो ये चीज़ नहीं करते हैं। अब हमने देखा कि इसके कॉज क्या है, कि भाई होता क्यों है एएसडी। बेसिकली क्या है, वैसे तो सबके कॉज लगभग सेम ही है। द एग्जैक्ट कॉज इज डिफिकल्टी टू आइडेंटिफाई, बट सर्टेन फैक्टर माइट बी रिस्पॉन्सिबल, सच एज जेनेटिक्स विच आई हैव टोल्ड यू, न्यूरोलॉजी, medical condition, or premature birth. See, and we have completed our second part here, and we will discuss in next class OD and OCD. OD means oppositional defiant disorder, and obsessive compulsion disorder stand is OCD. Okay, we will discuss in next class two topics here, and the advantage of physical activity for children with special needs. Okay, and what strategies to be adopted to make physical activities accessible for children with special needs. We will discuss in next class. Thank you so much.